Hello everyone, I am Divya Chaudhary, an assistant professor in Delhi Teachers Training College. This video is related to teaching of mathematics. My topic is need and importance of mathematics at secondary stage. Mathematics is the get and key of the sciences. Neglect of mathematics works injury to all knowledge, since he who is ignorant of it cannot know the other sciences or the things of the world. And what is worse, men who are thus ignorant are unable to perceive their own ignorance and so do not seek a remedy. This statement is written by Roger Bacon. So you can see in this slide also, and we can say that the importance of mathematics was realized even in the earlier days also. Then the aim of education was teaching 3 R's, that is reading, writing and arithmetic. आप सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंस बहुत ही पुराने समय से चलता आ रहा है और शुरू के टाइम पे टीचिंग का जो इम्पोर्टेंस था उनमें 3 मेन एम हुआ करते थे टीचिंग के, that is 3 R's. 3 R's means reading, writing and arithmetic. You all very well know that reading is पढ़ना, writing is लिखना and arithmetic is the calculation. That means कि आप किसी चीज को प्लस माइनस गुना भाग कर सकते हैं. Thus it had an important position even in the earlier school curriculum. So in this stage, study of mathematics is a constituent of full life. It is quite necessary for the all-round development of the child. The modern science and technology stress the importance of mathematics in the school curriculum. Mathematics is the mother of all sciences. In the absence of mathematics, science cannot progress. आप सबको पता है कि mathematics जो है उसकी study जो है वो ऑल ओवर द लाइफ, फुल लाइफ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है और नेसेसरी है, और ये हमारे ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होता है. मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो मैथमेटिक्स पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है आज के स्कूल करिकुलम में, और मैथमेटिक्स जो है वो सभी साइंसेस की मदर है. कहा जाता है कि मैथमेटिक्स जो है वो सारे साइंसेस की क्या है, माता हुआ करती हैं. सो मैथमेटिक्स, इन द एब्सेंस ऑफ मैथमेटिक्स साइंस कैन नॉट प्रोग्रेस. सो मैथ्स के एब्सेंस में हम साइंस को प्रोग्रेस नहीं कर सकते. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर कोई मैथमेटिक्स में अच्छा है तो हम कह सकते हैं उसे कि वो साइंस में भी अच्छा होगा. अगर कोई चाहता है कि वो साइंस ले तो उसे मैथमेटिक्स पढ़ना जरूरी होता है. बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको मैथ्स से डर लगता है लेकिन फिर भी वो साइंस लेना चाहते हैं तो वो बायो लेते हैं बट विदाउट मैथ्स लेते हैं. So in this context, mathematics does not mean merely a sum total of addition, subtraction, division and multiplication. It is a mother of discipline which forms a major part of human life. It is quite essential even for a layman and shopkeeper. Hence it occupies a strategic position in school curriculum. हम सब देखते हैं कि मैथ्स का आजकल इतना इम्पोर्टेंस है. आजकल क्या, बहुत पहले से इतना इम्पोर्टेंस है क्योंकि जब आप मैथ्स पढ़ रहे होते हुए तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो शॉपकीपर हो, कोई साधारण सा आदमी हो, कोई दूध वाला हो या कोई और हो, उन सबके लिए मैथमेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है. वो जब भी अपना कोई लाइक जैसे वो अभी एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि कोई दूध वाला आपके यहाँ दूध देने के लिए आता है एंड एट द एंड ऑफ मंथ जब वो अपना हिसाब करता है, अपना देखता है कि उसने कितने दूध दिए हैं, वो अपने क्या करता है, अपनी मनी का कैलकुलेशन करता है. उन कैलकुलेशन में भी उनको मैथ्स की जरूरत होती है कि उसने कितना दूध दिया, उसे कितना अमाउंट उस दूध के बदले मिलेगा. So here we can see that the importance of mathematics was realized even in the earlier days also. As we discussed that पहले के ज़माने में भी मैथमेटिक्स बहुत important था, जहाँ पे 3 R's उस टाइम पे एम हुआ करता था मैथमेटिक्स का या टीचिंग का, जिसमें रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक होता था. Now we come to the point of nature of mathematics. We can say that mathematics का क्या nature है, ये जानने के लिए अब हम आगे पढ़ेंगे. What is mathematics and how does it grow are the basic question which are the structure of mathematics must understand.
मैथमेटिक्स क्या है, इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले ये देखना पड़ता है कि मैथमेटिक्स क्या है, कैसे मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं, और कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं। इन सब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि मैथमेटिक्स का नेचर क्या है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द सब्जेक्ट्स हैव सेम नेचर। मैथमेटिक्स हैज़ इट्स यूनिक नेचर, दस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन कंपेयर इट विद अदर सब्जेक्ट। हम कहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट का नेचर एक जैसा नहीं होता। लाइक साइंस का नेचर अलग है, मैथ्स का अलग नेचर होता है, हिस्ट्री का अलग नेचर होता है, हिंदी का अलग होता है, एंड इंग्लिश का अलग होता है, बट सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। लाइक मैथ्स का अगर आप कोरिलेशन दूसरे टॉपिक में जब पढ़ें तो मैथ्स का कोरिलेशन दूसरे अलग अलग सब्जेक्ट से भी होता है। लाइक मैथ्स जो है वो हिस्ट्री से भी रिलेटेड होता है, मैथ्स हिंदी से भी रिलेटेड होता है, साइंस से तो ये रिलेटेड है ही, और साथ ही साथ मैथ्स जो है वो दूसरे लाइक इंग्लिश से रिलेटेड होता है, ज्योग्राफी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। So next slide is we can understand the nature of mathematics on the basis of following features. Like mathematics is the science of space, number, magnitude and measurement. हम कह सकते हैं कि mathematics क्या है, एक साइंस है किस चीज़ का, स्पेस का, नंबर का, मैग्नीट्यूड का एंड मेजरमेंट का। इट हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। मैथमेटिक्स की अपनी लैंग्वेज होती है, उनके अपने सिम्बल्स होते हैं। इट कंसिस्ट मैथमेटिकल टर्म्स, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, फार्मूलाज, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड साइंस। एंड इन्हीं लैंग्वेज के अंदर आप देखते होंगे कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में आप एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स को भी लेते हैं। मैथमेटिक्स इज सिस्टमेटाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स क्या है, सिस्टमेटाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है एंड साइंस का एग्जैक्ट ब्रांच है। लाइक मैथमेटिक्स जो है वो आप कह सकते हो कि मैथमेटिक्स एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेशन होता है। लाइक उसका अगर कोई आंसर आप दे रहे होते हो तो वो एग्जैक्ट आंसर होता है, उसमें आप कोई कंफ्यूजन नहीं होती है आपको। लाइक उसका जो अलग अलग मेथड जरूर हो सकता है उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का, बट उसकी जो आंसर होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं, और कोई भी जो उसका प्रोसेस होता है, कोई जो स्टेप होता है वो सिस्टमेटाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। Then mathematics involves conversion of abstract concept into concrete forms. Mathematics क्या करता है, conversion of abstract concept into concrete form. Abstract जो concepts होते हैं उनको concrete form में लेकर आता है। आप सब जानते होंगे कि abstract कॉन्सेप्ट क्या होता है, लाइक जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। एंड कॉन्क्रीट फॉर्म क्या होता है कि आप उसको देख सकते हैं, आप उसको छू सकते हैं, आप उसको टच कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको सामने दिखती हैं वो कॉन्क्रीट फॉर्म होती हैं, एंड जो चीज़ें आपको सामने नहीं दिखती बट उसकी वैल्यू है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग। मैथमेटिक्स क्या है, लॉजिकल रीजनिंग का साइंस है। लाइक यहाँ पे आप जब देखते होंगे कि आप उसमें लॉजिक सप्लाई करते हैं मैथ्स में, कोई आप प्लस माइनस ही कर रहे हैं, कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं किसी क्वेश्चन का, तो आप उसमें क्या करते हो, लॉजिक्स लगाते हो, कौन से लॉजिक्स वहाँ पे अप्लाई करनी है, कौन सा लॉजिक्स अप्लाई नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको मैथमेटिक्स के अंदर सीखने को मिलती है। मैथमेटिक्स हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग चिल्ड्रन। मैथमेटिक्स क्या करता है, बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करता है। इसका मतलब क्या हो गया, साइंटिफिक एटीट्यूड का क्या मतलब है कि बच्चों के अंदर एक्सपेरिमेंट करने की जो इच्छाएं होती हैं वो जगती हैं, वो कॉन्फिडेंट होते हैं, और आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं। लाइक और भी और चीज़ें जैसे हैं, कोई सॉल्यूशन कर रहे हैं, अगर एक चीज़ों में उनको वो फेल होते हैं तो वो दूसरी चीज़ों पे को उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए दूसरा सॉल्यूशन या फिर दूसरा स्टेप करते हैं या दूसरा वे ऑफ सॉल्विंग करते हैं, जिससे उनका क्या होता है, सॉल्यूशन फाइंड आउट होता है। इट डेवलप्स द एबिलिटी ऑफ इंडक्शन, डिडक्शन एंड जनरलाइजेशन। मैथमेटिक्स क्या करता है, एबिलिटी डेवलप करता है इंडक्शन की, डिडक्शन की एंड जनरलाइजेशन की। इंडक्शन का मतलब क्या हो गया कि आप चीज़ों को जनरल टू स्पेसिफिक लेते हैं। डिडक्शन का क्या मतलब है, जहाँ पे कोई चीज़ स्पेसिफिक होती है वहाँ से आप उसको जनरल पे लेकर जाते हैं। एंड जनरलाइजेशन मतलब कि अगर आप कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई एक एग्जांपल आपने देखा तो उससे आप दूसरा सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। लाइक अगर आपने पढ़ा कि जैसे हमारा होता है x प्लस वाई x प्लस ए स्क्वायर, वॉट इज a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सच एज अगर हम क्वेश्चन में दे दें कि x प्लस
5 square, what is the value of x plus 5 square? It means you have to generalize these x plus 5 whole square is equal to x square plus 2 into x into 5 plus 5 square. So इस तरह से thus on the basis of our points we can understand the nature of mathematics and draw conclusion that the structure of mathematics in school subject, that is why its study is essential in school education or secondary education. Roger Bacon again, here is the statement that Roger Bacon has well said that mathematics is the gateway and key for all sciences. Mathematics क्या है? Gateway है, एक key है सारे sciences का. That means कि mathematics पढ़ के आप साइंस को कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो हियर once again, mathematics is very useful subject for most vocations and higher specialized courses of learning, but everybody who is studying it in the school is not going to be an accountant, engineer or statistician. But at such an early stage of education, it is difficult to know who is going to be an engineer or banker. It means mathematics क्या है? एक useful subject है हर एक vocation के लिए, higher specialized courses के लिए. जब आप कहीं कुछ सीख रहे होते हैं higher education में, तो आपको क्या होता है, मैथ्स की जरूरत होती है. बट हम ये नहीं कह सकते कि स्कूल में जाने वाला हर एक बच्चा अकाउंटेंट बनेगा या इंजीनियर बनेगा या स्टैटिस्टिशियन बनेगा. बट एक अर्ली स्टेज में क्या होता है कि ये डिफिकल्ट होता है कि वो कौन इंजीनियर बनेगा और कौन बैंकर बनेगा. सो इन सच केसेस आप क्यों क्या करना है, आपको बच्चों की एबिलिटी को पहचानना है कि बच्चे किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, वो कहाँ जाना चाहते हैं, किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं. इन सब केसेस के थ्रू आप उनकी एबिलिटी को जब पहचान जाते हैं तो आप उनकी बेटरमेंट के लिए, उनका करियर डेवलप करने के लिए आप उनकी हेल्प करते हैं. लाइक मैथमेटिक्स डज हेल्प इन ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिनिंग द माइंड. मैथमेटिक्स क्या करता है, आपके माइंड को एक ट्रेनिंग देता है एडिशन करने की, सब्ट्रैक्शन करने की, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल थिंकिंग करने की. इन सब के लिए आपको एक ट्रेनिंग देता है, आपके माइंड को डिसिप्लिन करके रखता है. इट डेवलप्स द पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग एंड गिव्स मेंटल एक्सरसाइजेस बेस्ट फिटेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द फैकल्टीज ऑफ द माइंड. ऑल्दो द अपॉर्चुनिटी ऑफ सच एक्सरसाइजेस may also be given in the studying of other subject, but mathematics enjoys a unique position in this respect. Young remarks, mathematics is the only subject that encourages and develops logical thinking. मोस्टली लोगों का ये कहना है कि मैथमेटिक्स क्या करता है, एक अकेला सब्जेक्ट ऐसा है जो क्या करता है, लॉजिकल थिंकिंग को एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है. इट इनेबल्स द स्टूडेंट टू डिटरमाइन बिटवीन एसेंशियल्स एंड नॉन एसेंशियल्स. ये स्टूडेंट के अंदर एक एबिलिटी डेवलप करता है जिसमें उनको ये पता चलता है कि क्या चीज़ें एसेंशियल हैं और क्या चीज़ें नॉन एसेंशियल्स हैं. ब्रेड एंड बटर वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स कैन हार्डली बी डिनाइड. हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ब्रेड एंड बटर वैल्यू को भी हम डिनाई नहीं कर सकते. लाइक मैथ सीख कर भी आप अपने ब्रेड एंड बटर अर्न कर सकते हैं. इट मीन्स कि आप अपनी लाइवलीहुड को आप अपने उसको सस्टेन कर सकते हैं, आप अपनी कमाई कर सकते हैं अगर आपको मैथ्स आता है तो. Directly or indirectly, mathematics does not only help everybody in earning, but it helps in wise spending. Mathematics क्या करता है, सिर्फ अर्निंग में ही हेल्प नहीं करता, ये आपको अच्छी तरह से स्पेंड करने में भी हेल्प करता है. Study of mathematics is constituent of full life. It is quite necessary for the all-round development of the child. The modern science and technology stress the importance of mathematics in the school curriculum और कह सकते हैं secondary education. Mathematics is the mother of all sciences. In the absence of mathematics, science cannot progress. It is due to the contribution of mathematics man has moved even to the moon. Mathematics does not mean merely a sum total of addition, subtraction, division and multiplication. It is a mother discipline which forms a major part of human life. ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, बट स्लाइड्स यहाँ पे रह गई थी तो इसलिए मैं आपको स्लाइड्स दिखा रही हूँ. इट इज क्वाइट एसेंशियल इवन फॉर अ लेमैन एंड शॉपकीपर. हेंस इट ऑक्यूपाइज स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन स्कूल करिकुलम. So the next slide is values of mathematics teaching.
What is values of mathematics teaching? Values of mathematics teaching means mathematics पढ़कर आप क्या क्या वैल्यूज सीखते हैं या फिर मैथमेटिक्स की क्या क्या वैल्यूज हैं, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि मेरा टॉपिक है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन सेकेंडरी एजुकेशन, इनमें हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स का जो एजुकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। नॉट ओनली फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्राइमरी, मिडिल एंड हायर एजुकेशन। लाइक इन नीड एंड इम्पोर्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमने नेचर ऑफ मैथमेटिक्स को समझा। हमने देखा कि मैथमेटिक्स का जो नेचर है वो बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक मैथमेटिक्स का जो नेचर होता है वो आप कह सकते हो कि यूनिक होता है। And importance of mathematics, why mathematics is important? Mathematics is an important subject in school curriculum. It is more closely related to our daily life as compared to other subject. आप सबको पता है कि मैथमेटिक्स क्या है, क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट को हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते जितना कि हम मैथमेटिक्स को अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। सच एज आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर आप किसी बच्चे को, वो छोटा सा बच्चा है अभी, कहते हैं ना कि लर्निंग स्टेज में है, अभी वो बढ़ रहा है, ग्रोइंग चिल्ड्रन है। आप सपोज करो उसे कहीं भेजते हो, घर के बाहर कोई सामान लाने के लिए भेजते हो, तो वहां पे भी वो मैथमेटिक्स के एप्लीकेशंस को सीखता है। लाइक जब आप उसको शॉप पे भेजते हो, सबसे पहले वो क्या सीखता है, मेजरमेंट सीखता है। लाइक आपको अगर सपोज करो आपको मिल्क मंगवाना है, तो कितना मिल्क मंगवाना है, आप 2 लीटर 3 लीटर मिल्क मंगवाते हो, तो यहाँ पे 2 लीटर 3 लीटर क्या है, क्वांटिटी है मिल्क की। इसी तरह से जब वो शॉप पे जाता है, बोलता है कि 2 लीटर 3 लीटर मिल्क मुझे दो, उस कंडीशन में जब वो वहां पे शॉपकीपर के पास जाता है, वो पूछता है शॉपकीपर से कि इसका प्राइस कितना है, तो वहां पे उसको एक प्राइस अमाउंट पता चलता है कि ये दूध का प्राइस, एक पैकेट का प्राइस जो है लाइक 21 और 22 रुपीज है। अगर वो 3-4 पैकेट लेता है तो उन 3-4 पैकेट्स का प्राइस कितना होगा। सो इन सब कंडीशन में आप देखते हैं, लाइक अगर आप घर पे ही आप बच्चे से टाइम पूछ रहे होते हैं कि अभी बताओ कितना टाइम हो रहा है, लाइक अभी अगर 8:25 टाइम हो रहे हैं, तो वहां भी बच्चा क्या कर रहा है, एक कैलकुलेशन कर रहा है, एक उसकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है। वो क्या करता है, टाइम सीखता है वहां पे 8, 5 एंड जो मेजरमेंट, जिस तरह से वो जो वॉच का जो कहते हैं ना कि सुई है वो घूम रही होती है, किस डायरेक्शन में घूम रही होती है, तो ये सारी चीजें बच्चों को पता चलती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी मैथमेटिक्स का यूज अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन को हम करते हुए देखें तो मैथ्स जो है वो अदर सब्जेक्ट से ज्यादा यूज होता है हमारे डेली लाइफ में। Except our mother tongue, there is no other subject which is more closely related to our daily life as mathematics. Mathematics is considered as father of science. In present days, mathematics has been given an important place in school curriculum. In order to give an important place in curriculum, a particular subject must possess the following views. Like first one, utility of particular subject in daily life, and second one is whether the subject is helpful in the development of mental discipline or not, and the third one is the social and cultural importance of particular subject. Like first one is utility of particular subject in daily life. Like अगर किसी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस देखनी है तो हमें क्या देखना पड़ता है कि उस सब्जेक्ट की यूटिलिटी कितनी है, हम उस सब्जेक्ट को कितना यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। सेकेंड वन इज वेदर द सब्जेक्ट इज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल डिसिप्लिन और नॉट। दैट मीन्स कि अगर कोई सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस हमें देखनी है तो हमें ये देखना पड़ता है कि उस सब्जेक्ट का जो डेवलपमेंट है, उस सब्जेक्ट को पढ़ने से बच्चे का माइंड कितना डेवलप हो रहा है और माइंड डेवलप हो भी रहा है या नहीं हो रहा। एंड थर्ड वन इज द सोशल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लाइक कि उस सब्जेक्ट का सोशल और कल्चरल इंपॉर्टेंस कितना होता है। तो इन तीनों कंडीशन को अगर हम देखें तो इन तीनों कंडीशन को देखते हुए हम ये समझते हैं कि मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा है सेकेंडरी एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में, और कहीं भी आप देख लो, आप हायर एजुकेशन की बात ले लो तो वहां भी मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है।
सो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि टुडे मैथमेटिक्स होल्ड्स एन important place in schools. For giving a place in curriculum, there is no special need of evaluation and testing of it. Mathematics also helps to develop the child as social and intellectual citizens like other subject. It has its own disciplinary values. In addition to these, mathematics also develops those qualities which can be developed by other subjects. So now we discuss about values of mathematics teaching. What do you mean by values of mathematics teaching? Values are regarded as desirable, important, and are held in high esteem by the people who live in a particular society. These values give meaning and strength to a person's character by occupying a central place in his life. Values are the guiding principles of life which are conducive to all-round development. Therefore, values reflect one's personal attitudes, judgments, decisions, choices, behavior, relationships, dreams, and vision. Napoleon also remarked that the progress and improvements of mathematics is linked to the prosperity of the state. Therefore, mathematics plays an important role in the progress of society. Mathematics teaching has the following values. So here we can see these are following values of mathematics teaching. First one is intellectual value, moral value, utilitarian value or practical value, disciplinary value, social value, cultural value, aesthetic value, vocational value, psychological value, value related to scientific attitude, and international value. Just a minute. I don't know what is happening here. I think the volume of this video is there is some problem in the audio of that. So here we are in the part of values of mathematics teaching. So first one is intellectual value. What do you mean by intellectual value? The next slide is intellectual value. Here we can see that in intellectual value there are some points like observation, memory, concentration, discovery, self-reliance, and hard work. What it means? Observation, memory, concentration, discovery, self-reliance, and hard work. लाइक जैसा इसका नाम है इंटेलेक्चुअल वैल्यू. इंटेलेक्चुअल वैल्यू मीन्स आपकी इंटेलेक्ट को शो करता है, और इनमें जितने भी पॉइंट्स हैं ऑब्जर्वेशन, मेमोरी, कंसंट्रेशन, डिस्कवरी, सेल्फ रिलायंस, हार्ड वर्क, ये सारी चीज़ें आपकी मेमोरी, आपके माइंड, आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है. तो हम इस तरह से देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल वैल्यू क्या होता है, डेवलप होता है हमारे अंदर मैथमेटिक्स को पढ़ने से. सो हियर there are some points such as first one is intellectual values. Mathematics teaching is very important for intellectual value, intellectual development. There is no other subject in the curriculum like mathematics which make students brain active. Problem solving helps us in development of mental faculties. Mental work is needed for solving mathematical problem. As a child faces a mathematical problem, his brain becomes active in solving that problem. Each problem
of mathematics possesses such a sequence which is necessary for constructive and creative process. In this way, all mental abilities of child are developed through mathematics. आपने देखा है इसमें कि हम इंटेलेक्चुअल वैल्यू डेवलप करते हैं मैथमेटिक्स को पढ़ के. इसका क्या मतलब होता है कि जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है, आपके अंदर रीजनिंग एबिलिटी डेवलप होती है, आप लॉजिकल थिंकिंग करने लगते हैं. एक ऐसा सीक्वेंस बनता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिव बन जाते हो, आप क्रिएटिव बन जाते हो, आपकी मेंटल एबिलिटीज जो होती हैं वो डेवलप होती हैं. सो थ्रोइंग लाइट ऑन इंटेलेक्चुअल वैल्यूज ऑफ मैथमेटिक्स, अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट Plato has said, mathematics is the subject which provides an opportunity for training the mind to close thinking, stirring up a sleeping and unstructured spirit. So here we can say that it is very important. So it is very important. What is important? Mathematics is very important to develop intellectual values in students or in children. Second one is utilitarian or practical value. What it means, utilitarian or practical value? Utilitarian means कि मैथ्स जो है वो आप मैथ्स की यूटिलिटी आपके लाइफ में कितनी है. अभी जैसे हमने तुरंत डिस्कस करा कि मैथ्स की यूटिलिटी हमारे लाइफ में डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा है. हम हर एक पॉइंट पे मैथ्स को यूज़ करते हैं, चाहे हम घर में हो या घर के बाहर हो, हर जगह पे क्या होता है, मैथ्स का यूज़ होता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैथ्स पढ़ने से आपकी यूटिलिटेरियन और प्रैक्टिकल वैल्यू डेवलप होती है. लाइक आवर डेली लाइफ एंड बिहेवियर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मैथमेटिक्स. वी नीड मैथमेटिक्स इन ऑर्डर टू क्लासीफाई एंड टू अंडरस्टैंड एवरी फैक्ट. वी नीड इट्स नॉलेज इन आवर डेली रूटीन, हाउस, आउटसाइड, मार्केट, इनकम, एक्सपेंडिचर, एटसेट्रा. In the absence of mathematical knowledge, a person can neither treat his family well nor he can face his social duties. In his way, every aspect of our life is concerned with the application of mathematics. So हमने देखा कि जो यूटिलिटेरियन वैल्यू है ये क्या है कि आपके डेली लाइफ में मैथ्स के यूजेस को बताती है. लाइक आपका मैथ्स जो है, जब आप मैथ्स पढ़ रहे होते हो तो उसका कितना यूज़ होता है. आप घर में होते हो तो इसका यूज़ होता है, आप घर के बाहर होते हो तो इसका यूज़ होता है. अगर कोई मैथ्स नहीं जानता है, अगर या मैथ्स उसको कुछ भी मैथ्स के बारे में पता नहीं है, तो वो अपने फैमिली को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाता है. Our daily routine, measures, calculations are all dependent on it. हमारा डेली रूटीन कुछ भी मेजर करना होता है, जो कैलकुलेशंस करनी होती है, ये सारी चीज़ें मैथ्स पे डिपेंड करती है. बिफोर स्लीपिंग एंड आफ्टर अवेकनिंग मैथमेटिक्स इज मस्ट फॉर अस. हमारे लिए क्या है, जब हम सोने के लिए जाते हैं, सोने से पहले और उठने के बाद हर टाइम पर मैथ्स की क्या होती है, ज़रूरत हमारे को होती है. So each and every person of society needs mathematical knowledge. Either he is accepted personality or rejected one. It is not that mathematical knowledge is needed only by engineers, doctors, tenders, businessmen, etc. But also it is needed to smallest citizen of society such as laborers, workers, drivers, coolies, salesmen, vendors, etc. जैसा कि अभी हमने तुरंत डिस्कस करा था कि मैथ्स का जो यूज़ है वो सिर्फ इंजीनियर, आर्किटेक्ट, बैंकर या फिर अकाउंटेंट, इनको ही नहीं होता. जो नॉर्मल लेमैन होते हैं उनको भी मैथ्स का यूज होता है. जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया कि कूलीज, ड्राइवर्स, वर्कर्स, लेबरर्स या नॉर्मल सिटीजन ऑफ सोसाइटी, इन सबको मैथ्स का यूजेस होता है. सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स पढ़ने से आपकी जो यूटिलिटी होती है वो आपकी बढ़ जाती है, या फिर मैथमेटिक्स क्या करता है, आपके अंदर प्रैक्टिकल वैल्यू को डेवलप करता है. So third one is disciplinary value. Disciplinary value means mathematics is not meant only for development of mental abilities but also to develop their personality with some qualities like concentration, truthfulness, seriousness, etc. That is why the disciplinary value of mathematics is also important. A person who is gaining mathematical knowledge is not in favor of working against the rules of under sentimental situation. Disciplinary value का मतलब कि मैथमेटिक्स पढ़ने से आपके अंदर डिसिप्लिनरी वैल्यू डेवलप होती है. लाइक आपके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर आता है, आप एक कहते हैं ना कि आपके अंदर एक सेंसेशन आता है, आपका
कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, ट्रूथफुलनेस इंक्रीज होती है, सीरियसनेस इंक्रीज होती है। ये सारी चीजें हमारे डिसिप्लिन के अंदर ही आती हैं। अगर कोई पर्सन है वो मैथमेटिकल नॉलेज गेन कर रहा होता है तो वो आदमी कभी भी किसी भी सिचुएशन के, किसी भी सेंटिमेंटल सिचुएशन के अगेंस्ट में नहीं जा सकता, वो हमेशा उसके फेवर में ही रहता है। So mathematics is the only subject whose knowledge develops the habit of hard work, concentration, well organized and clarity in the students. Even मैंने देखा है कि जिनका भी मैथ्स एक सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट है, या अगर कोई मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है तो वो क्या होता है, आप ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर आप देख पाएंगे, जैसे कि कंसंट्रेशन, हार्ड वर्क, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लियरिटी। वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्लियर होता है, उसके बाद हार्ड वर्किंग होता है। ये सारी चीजें, ये सारी खूबियां आप उन स्टूडेंट्स के अंदर देख पाएंगे जो मैथ्स में इंटरेस्ट लेता है। दीज आर सच कंडीशंस विच इनेबल द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स टू लीड सीरियसली, विजडमफुल एंड डिसिप्लिन्ड लाइफ। नेक्स्ट वन इज मोरल वैल्यू। What is moral value? Morality is the important phase of life which is most affected by time, person, situation and place. Mathematical knowledge is helpful in character and personality development. It develops all those qualities which a person of strong character must possess. Child develops qualities of cleanliness, reality, punctuality, truthfulness, honesty, loyalty, justice, dutifulness, self-control, self-reliance, self-confidence, patience, listens to others and respect them. These all words are very कह सकते हैं आप कि these all words are very important for moral values, और these all words define you morally strong. जैसा कि भी मैंने आपको बताया कि जो ये सारे वर्ड्स है, क्लीनलीनेस, रियलिटी, पंक्चुअलिटी, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, जस्टिस, ड्यूटीफुलनेस एटसेट्रा, ये सारी चीजें मैथमेटिक्स पढ़ के आपके अंदर डेवलप होती है। दैट मीन्स कि मैथमेटिक्स पढ़ने से आपका मोरल वैल्यू डेवलप होता है। So next one is social value. In social value, you can see here in slides such words justice, hefty, competition, symmetry, fair play, etc. It means what is social value? By learning mathematics, you can develop social value in you, और कह सकते हो कि it inculcates social values in you. So we can say man is a social animal and human life depends upon the cooperation of each other in order to live a social life. In order to live a social life, its knowledge is needed because the give and take process, business and industry depends upon the knowledge of mathematics. The change in the social structure with regards to modern facilities like mode of transport, means of communication and progress in the field of science and technology is due to mathematics only. Ideal education is that which helps to make a child a qualified and useful citizen of society from the beginning. It means आइडियल एजुकेशन क्या है कि जो बच्चों को शुरू से ही एक क्वालिफाइड बनाए और यूजफुल सिटीजन ऑफ सोसाइटी बनाए, तो वो एक क्या है, एक प्रॉपर आइडियल एजुकेशन कहलाता है। और यही काम मैथमेटिक्स भी करता है। मैथमेटिक्स पढ़ने से बच्चे शुरू से ही क्वालिफाइड होते हैं, एक यूजफुल सिटीजन बनते हैं। कोई ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, उसमें भी वो मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। और कोई भी गिव एंड टेक की का प्रोसेस हो रहा है, वहाँ भी वो मैथ्स को यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो हमारे सोशल वैल्यू को भी डेवलप करता है। The next slide is, and the next values are psychological value, aesthetic value, vocational value, international values, cultural value, values related to scientific attitudes. Cultural value means the culture of every nation or society has its unique characteristics. It has its own importance. Each nation or society reflects its culture by its living standards, rituals, artistic progress, economic, social and political aspects, etc. The history of mathematics presents the image of culture of different nations. The person is said to be cultured if one is well educated and have refined
manner of dealing. The person becomes critical observer, logical thinker, and proper knowledge of mathematics changes the mind of the person. Thus, the person becomes more cultured with the proper knowledge of mathematics. Here, cultural values in these box we can see here: changes way of living, overcome difficulties, progress in various occupation. It means these all words are the key words of cultural values. That means कि mathematics develops in you cultural values such as changes way of living. That means कि you can adjust in the changed environment. You can change your living style according to the environment, overcome difficulties, progress in various occupations. The next one is aesthetic value. What is aesthetic value? Mathematics is just like a song, beautiful, and art, music, and a means of gaining pleasure for those who studies and likes it. But only few people who have not yet studied it have made a belief that mathematics is dull and boring subject. हम सबको पता है कि मैथ से सबको डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगी कि मैथ्स आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए. मैथ्स से डरने की कोई जरूरत नहीं है. कहा जाता है, हमारे बूढ़े पुराने लोग कहते थे कि मैथ्स से हम जितना ज्यादा भागते हैं, मैथ्स हमारा उतना ज्यादा पीछा करता है और हम उससे उतना ज्यादा डरते हैं. अगर हम मैथ्स में इंटरेस्ट लेते हैं तो मैथ्स हमें ईजी लगने लगता है. जब हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होता है. तो ये सारी चीजें एस्थेटिक वैल्यू को डेवलप करता है. तो आप देख सकते हैं कि जो कोई स्टूडेंट अगर कभी मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं लिया है तो वो तो चाहेगा ही, वो तो सोचता ही है कि मैथ्स क्या है, एक डल सब्जेक्ट है, बोरिंग सब्जेक्ट है. बट आप उन लोगों से पूछे जिनको मैथ्स अच्छा लगता है, उनके लिए मैथ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है. वो मैथ्स को बहुत ही दिल से मैथ्स के सॉल्यूशंस करते हैं. और ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको मैथ्स इतना अच्छा लगता है कि वो अगर कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो वो जहां भी जाते हैं उनके माइंड में वो लॉजिकल थिंकिंग चलती रहती है. वो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए डिस्परेट हुए रहते हैं. सो आप देख सकते हो कि इस तरह से किसी पर्सन के अंदर या किसी स्टूडेंट के अंदर एस्थेटिक वैल्यू क्या होती है, डेवलप होती है. वन गेट्स प्लेजर इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, स्पेशली व्हेन ही गेट द करेक्ट आंसर टू हिज प्रॉब्लम्स. एट दैट मोमेंट एवरी चाइल्ड फील्स प्लेजर, सेटिस्फैक्शन, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस. Perhaps this is the reason that Pythagoras gave scarification of 100 oxen when he discovered his theorem. Keats has well remarked that truth is beauty. Thus, whenever a mathematician discovers something new with the help of mathematical laws, facts, theorems and principles, a sense of joy is developed in his mind. So इस तरह से aesthetic value क्या होती है, उनके अंदर develop होती है, joy उनके अंदर develop होता है, happiness develop होता है, confidence level उनका बढ़ता है. तो इस तरह से आप कह सकते हो कि mathematics पढ़ने से लोगों का aesthetic value क्या होता है, develop होता है. Next one is vocational value. What is vocational value? Here in vocational value box, you can see that self-dependence, maintain living standard, etc. The main aim of education is to help the children to earn their living and to make them self-dependent. जाहिर सी बात है, हर एक कोई भी एजुकेशन, किसी भी तरह का एजुकेशन होता है, उसका मेन एम क्या होता है कि वो बच्चे को अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए सिखाता है, ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए सिखाता है. दैट मीन्स कि वो ये कहता है कि आप पढ़ लिख कर कुछ कमाओ और कमा के अपने पैरों पे खड़े हो और इंडिपेंडेंट बनो, डिपेंडेंट नहीं बनना है. टू अचीव सच एम, मैथमेटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देन एनी अदर. एट प्रेजेंट द vocational value of engineering, technology, management, information technology has become more important and prestigious or reputed. The knowledge and training of these vocations is possible only through mathematics.
सो इन सब चीज़ों की जो नॉलेज होती है, किसी भी चीज़ों की जो ट्रेनिंग होती है, वो सिर्फ मैथमेटिक्स से ही पॉसिबल हो सकती है. सो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी वोकेशन नीड्स द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स. इवन टू लर्न डिफरेंट वोकेशंस related to different branches of science require the knowledge of mathematics. Moreover, mathematics plays a very important role in different vocations. So इस तरह से हम देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स का यूज क्या होता है, अलग अलग वोकेशंस में भी होता है. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, एक आर्किटेक्ट जो होता है वो कभी भी गॉड डिजाइनर को, लाइक एन आर्किटेक्ट कैन नॉट बिकम अ गॉड डिजाइनर विदाउट द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्रिकल ड्राइंग एंड मेजरमेंट. लाइक जो एक आर्किटेक्ट होता है वो कभी भी ऐसा ड्रॉ नहीं कर सकता, ऐसा आर्किटेक्ट नहीं कर सकता अगर वो मैथ्स की ज्योमेट्रिकल आइडियाज उसको ना हो, वो ज्योमेट्री ना पढ़ा हुआ हो, वो हाइट एंड डिस्टेंस ना पढ़ा हुआ हो, या फिर ज्योमेट्रिकल ड्राइंग और मेजरमेंट का अगर उसको कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, तो वो कभी भी एक अच्छा आर्किटेक्ट नहीं हो सकता है. इसी तरह से मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ कि ऑफिशियल वर्कर रिक्वायर द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स. जो भी ऑफिशियल वर्कर्स होते हैं, चाहे वो अकाउंटेंट हो, या फिर आप कह सकते हैं जो CA हो, CS हो, या फिर जो CWA हो, या फिर आप ऑफिस में और भी बहुत लेवल पे लोग होते हैं, उन सबको, जितने भी लोग होते हैं, उन सबको मैथमेटिक्स के नॉलेज की जरूरत होती है. ऐसे ही मैं तीसरा एग्जांपल आपको बताऊं, टू बिकम एन इंजीनियर, अकाउंटेंट, बैंकर एक्सेट्रा, देयर इज अ नीड ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज. फैक्ट है कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, +2 में आपको मैथ्स रखना पड़ता है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री. इसी तरह से अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको +2 में कॉमर्स रखना पड़ता है विद मैथ्स. अगर आप कॉमर्स रखते हैं और कॉमर्स पढ़ रहे होते हैं तो उसमें भी आपको मैथ्स की जरूरत होती है, हर जगह आपको मैथ्स की जरूरत होती है. अगर आप बैंकर बनना चाहते हैं तो वहां भी आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए, आपको मैथ्स की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आप इन सारे फील्ड्स में जा सकते हैं. सो इन सारे फील्ड्स में जाने के लिए आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली, टू अंडरस्टैंड डिफरेंट साइंसेज, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज मस्ट. दैट मीन्स कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हो, आप फिजिक्स पढ़ रहे होते हो, उन सब ब्रांचेस में भी आपको क्या करना पड़ता है, मैथमेटिक्स के नॉलेज की जरूरत होती है. और इस तरह से मैथमेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है वोकेशनल वैल्यू के लिए भी. द नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल वैल्यू. मैथमेटिक्स एजुकेशन इज ऑल्सो यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स. Mathematics fulfills the psychological needs of the children. In mathematics, emphasis is given on operation and drill work so that its knowledge become more solid as well as durable. The teaching of mathematics follows the various laws and principles of psychology. For example, the child acquires knowledge on the various principles of psychology such as learning by doing, learning through experience, and problem solving, etc. Through its knowledge, the child develops and satisfies his desires, creative and constructive tendencies, self-satisfaction, self-assertion, etc. That means कि psychological value भी आपकी डेवलप होती है अगर आप मैथ्स पढ़ते हो. लाइक हम टीचर एजुकेटर हैं, हम अगर किसी मैथ, अगर हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट को ही लें, साइकोलॉजी में भी अलग अलग टेस्ट होते हैं. एटीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, या फिर IQ लेवल का टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट जिसको हम कहते हैं. उन सारे टेस्टिंग के लिए भी आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए. आपको क्या होता है कि उसमें मैथमेटिक्स के जो कैलकुलेशंस होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, या फिर जो आप लेवल फाइंड आउट करते हैं कि कोई स्टूडेंट जो है, वो कोई चिल्ड्रन जो है वो एवरेज है, अबव एवरेज है, या फिर एक्सीलेंट है, या फिर बिलो एवरेज है, माइल्ड है, या फिर मॉडरेट है. तो इन सारे कंडीशंस को चेक करने के लिए आपको मैथमेटिक्स की जरूरत होती है, उसके कैलकुलेशंस की जरूरत होती है. और जब तक आपको मैथ्स नहीं आएगा, आप मैथ्स नहीं करोगे, आप ये सारी चीजें भी नहीं कर पाते हो. And the next one is value related to scientific attitude. Here it means the knowledge of mathematics trains the children in attempting the problems according to a definite and distinct procedure which may be called as the scientific method. Generally, scientific method involves the following steps, such as first one is identification of the problem, second one is defining the problem, third one is collection of data, information regarding the problem, fourth one is drawing conclusion, and fifth one is verification of the result. That means
अगर हम टीचर एजुकेटर हैं और आप बीएड स्टूडेंट्स हो, अगर आप बीएड स्टूडेंट्स हो और अगर आप कोई एक्शन रिसर्च कर रहे होते हो, या अगर आप एमएड के भी स्टूडेंट हैं, एमएड करना चाह रहे हैं, कोई रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं, तो उन सब में आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। ये क्या करता है, मैथमेटिक्स आपके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करता है। लाइक अगर आप कोई रिसर्च कर रहे होते हो तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, देन प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, देन आप डाटा कलेक्शन करते हो, इंफॉर्मेशन गैदर करते हो उस प्रॉब्लम से रिगार्डिंग, देन आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं एंड देन वेरिफिकेशन करते हैं रिजल्ट की। दैट मीन्स आप डाटा को एनालाइज करते हैं, आप इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो इन सारी चीजों को करने के लिए, इन सब प्रोसेस में आपको मैथ्स की जरूरत पड़ती है। सो दिस वी कैन रीच टू द डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम एंड देन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सो साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है, आपके अंदर डेवलप होता है। इट इन्वॉल्व्स ओपन माइंडनेस, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, सस्पेंडेड जजमेंट, फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशन एंड फॉल्स बिलीफ। सो मैथ्स पढ़ने से ये सारी चीजें आपके अंदर डेवलप होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल वैल्यू. What is international value? Here in international value, we can see the two terms, progress and discovery. Mathematics not only gives the knowledge about the nation and its background, but also gives a message of nationality. The progress in the field of mathematics is neither the achievement of a single person, nation, society, caste or religion followers only, nor it is the property of a particular nation. Any invention of a nation, when crosses its boundaries, it reaches to its international value. This is the reason of the progress in the field of science and mathematics. Nowadays, it is the requirement of the time that all the scientists, mathematicians, educationists and researchers of the world should work as an integrated nation. These all facts reflect the international value of teaching mathematics. Hence it is quite clear from the above discussion, इन सब डिस्कशन से हम क्या होते हैं, थोड़े क्लियर होते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ही वैल्यूबल है, इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकली बेस्ड है और बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है टू आवर डे टू डे लाइफ. इट इज जस्टिफाइड टू बी इंक्लूडेड इन द स्कूल करिकुलम. सो हम कह सकते हैं कि मैथ्स का बहुत ही ज़्यादा नीड है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है. किस चीज़ के लिए? हमारे सेकेंडरी एजुकेशन के लिए. Here the next slide is all great educationists like Herbert, Pestalozzi, etc. has accepted mathematics as a symbol of human development, accepting mathematics as a best means of intellectual and cultural development. These educationists placed mathematics on the top in the curriculum. Thus, we can give certain logical points regarding mathematics as a compulsory subject. What these points are? These are as follows. First one is, if mathematics is not given an important place in the curriculum, then student would not get any opportunity for mental training, and in the absence of which their intellectual development might be affected. अगर हम बच्चों को मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं दें सेकेंडरी एजुकेशन में, तो क्या होता है कि वो जो होता है वो उनकी मेंटल ट्रेनिंग नहीं हो पाती, और उनके मेंटल ट्रेनिंग के एब्सेंस में क्या होता है, उनका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए वैसा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो पाता. उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या करता है, अफेक्टेड होता है. The next, for gaining the knowledge of mathematics, no innate power is required, which is separate from ability of study of other subject. मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए, इसकी नॉलेज लेने के लिए किसी इनेट पावर की ज़रूरत नहीं होती है. ये अदर जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे होते हैं, दूसरे सब्जेक्ट की एबिलिटी से क्या होता है, डिफरेंट होता है. Next point is training and reasoning, thinking, discipline, self-confidence and emotions are developed in students by mathematics. जैसा कि हम अभी इन सारे वैल्यूज में पढ़ चुके हैं कि जो मैथमेटिक्स का जो वैल्यूज है, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप होती है. आपके अंदर ट्रेनिंग एंड रीजनिंग डेवलप होती है, थिंकिंग पावर डेवलप होती है, डिसिप्लिन डेवलप होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आपका इमोशन डेवलप होता है, और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो डेवलप होता है, सेल्फ रिलायंस होती है, आप जॉयफुल होते हो. तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स एजुकेशन के कारण क्या होता है, आपके अंदर डेवलप होता है, और जिसके कारण मैथमेटिक्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो थ्रू मैथमेटिक्स चाइल्ड लीन्स टू गेन नॉलेज सिस्टमैटिकली. इट इज नीडेड ईदर फॉरवर्डली और एडवर्सली फॉर स्टडिंग ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज द बेसिस ऑफ साइंस इन ईच एंड एवरी आर्ट.
Reasons for keeping mathematics in secondary education, as we all studied that what are the nature of mathematics and what are the values of mathematics. Here some points in under comes under reason of keeping mathematics in secondary education. The first one is mathematics is the basis of all sciences. As we discussed, mathematics is related to human life. Mathematics generates logical attitude. It provides a definite way of thinking. It is an exact science. Mathematics provides opportunity to develop mental abilities of child. Mathematics helps in character formation as well as morality. It develops the characteristics of discipline. The language of mathematics is universal. Mathematics is the study of seeds and structure. So, here there are some more points which we have to discuss here. Mathematics provides opportunity to develop mental abilities of the child. Mathematics is an exact science. Exact science means, for example, we have taken 2 plus 2 is equal to 4. It cannot be 3 or 5. इसी तरह से अगर आप देखें कि 24 divided by 3 is equal to 8. There is no other answer except 8. So आप देख सकते हो कि जब भी हम कोई सॉल्यूशन करते हैं तो उसका एक एग्जैक्ट आंसर आता है, तो हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स क्या है, एक एग्जैक्ट साइंस है. इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू डेवलप मेंटल एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड. मैथमेटिक्स हेल्प्स इन कैरेक्टर फॉर्मेशन एज वेल एज मोरालिटी एज वी डिस्कस्ड हियर. मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ सीड्स एंड स्ट्रक्चर. Here some points are, generally mathematics have basically 3 structures. First one is the algebraic structure, second one is the order structure, and third one is the topological structure. In algebraic structure, as we all know, in algebraic structure we study operations of addition, multiplication, generalization, subtraction, division, etc. The order structure means this is the type of structure includes concepts like greater than or less than or equal to. And the topological structure include different concepts like limits, neighborhood or nearness, etc. So now today we discussed that need and importance of mathematics. So in conclusion, here we come to the conclusion that why mathematics is important and what is the nature of mathematics and what are the values of mathematics, or we can say that what are the need and importance of mathematics at secondary education. So we can say that this on the basis of our discussion, हमने जो भी डिस्कस करा है, हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी नॉलेज बहुत ही ज़रूरी होती है हमारे होल लाइफ के लिए. इट कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन एवरी चाइल्ड विल स्टडी मैथमेटिक्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट अप टू 10th standard. Mathematics occupy a prominent place in man's life, from an engineer to technician or labor to finance minister and other businessmen, all needed the help of mathematics according to their requirements. The next point is the knowledge of this subject is indispensable and it is bound to grow as need grows. A mathematical approach is essential for any progress. If anybody wants to get success in his life, he must have resource to mathematics. Thus, mathematics should be placed in higher level even though it is required for earning. So we can say that it can be possible only when every child will study mathematics as a compulsory subject up to 10th or up to 12th classes. So after these discussions, we recapitulate that what we have discussed today. We discussed what is mathematics, what are the nature of mathematics, some definitions of mathematics, and what are the nature with the nature of mathematics we studied about the different types of values of mathematics, such as intellectual values, social values, disciplinary value, utility value, vocational value, etc.
And after that, after reading the values or after studying the values, we can conclude that why mathematics is important, and when mathematics is not included in the secondary education, what will happen. So after these discussions, we can say that mathematics is very important subject in secondary education. It should be the most important subject, or it should be included in all the schools up to 10th class. There will be no options for taking a mathematics education to develop the children. So आज के लिए इतना ही. अभी आप सबको पता है कि अभी कोविड-19 का प्रकोप हम सबके ऊपर चल रहा है, तो हम सबको घर पे रहना है, एक साथ रहना है, ऑनलाइन एजुकेशन करनी है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब घर पे रहें, सुरक्षित रहें. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू सो मच. नमस्कार आप सबको. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.